नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुञ्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. એમાં સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં 21 કળશ પૂરા થયા છે. આજે 22મો કળશ આપણે લઈએ છીએ, એટલે કે સળંગ કળશ 214 નો સ્વાધ્યાય આજે આપણે કરીશું. સમયસારમાં આપણે પહેલા જ વાત કરી એ પ્રમાણે કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 355 પછીથી 4 કળશ કહેવામાં આવ્યા: 211, 212, 213 અને 214. તો એ પૈકીનો આ ચોથો કળશ છે. અને એમાં અહીંયા એના શ્લોકાર્થમાં કહે છે કે એક વસ્તુ સ્વયં પરિણમતી, વસ્તુ પોતે સ્વયં પરિણમે છે, એટલે કે છે કે એક વસ્તુ સ્વયં પરિણમતી અન્ય વસ્તુને કાંઈ પણ કરી શકે છે એમ જે માનવામાં આવે છે તે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ માનવામાં આવે છે. નિશ્ચયથી આ લોકમાં અન્ય વસ્તુને અન્ય વસ્તુ કાંઈ પણ નથી, અર્થાત એક વસ્તુને અન્ય વસ્તુ સાથે કાંઈ પણ સંબંધ નથી. નિશ્ચયથી તો વસ્તુ સ્વરૂપ આવું છે. ભાવાર્થમાં પંડિત જયચંદ્રજી છાબડા કહે છે કે એક દ્રવ્યના પરિણમનમાં અન્ય દ્રવ્ય નિમિત્ત દેખીને એમ કહેવું કે અન્ય દ્રવ્ય આ કર્યું તે વ્યવહારનયની દ્રષ્ટિથી જ છે. નિશ્ચયથી તો તે દ્રવ્યમાં અન્ય દ્રવ્ય કાંઈ કર્યું નથી. એટલે વ્યવહારથી કરે છે એમ નહીં, પણ એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એ કહેવાય છે. નિશ્ચયથી તો તે દ્રવ્યમાં અન્ય દ્રવ્ય કાંઈ કર્યું નથી, એટલે ખરેખર કાંઈ કર્યું જ નથી, પણ છતાંય એવો વ્યવહાર છે, કહેવાનો વ્યવહાર, એટલે વ્યવહાર નયની દ્રષ્ટિથી જે કહેવાય છે એમ એનો અર્થ છે. કેટલાક એમ માને કે વ્યવહારથી કરે અને નિશ્ચયથી એમ નહીં. વ્યવહારથી કરે એવી વાત નથી, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એમ કહેવાય. એટલે જરાક વાતને બરાબર આમાં સમજવાની છે કે એક દ્રવ્યના પરિણમનમાં અન્ય દ્રવ્ય નિમિત્ત છે એવું નિમિત્ત દેખાય તો એમ કહેવું કે અન્ય દ્રવ્ય આ કર્યું તે વ્યવહારની દ્રષ્ટિથી જ છે. નિશ્ચયથી તો તે દ્રવ્યમાં અન્ય દ્રવ્ય કાંઈ કર્યું નથી. વસ્તુના પર્યાય સ્વભાવને લીધે વસ્તુનું પોતાનું જ એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થારૂપ પરિણમન થાય છે. વસ્તુનો એવો સ્વભાવ છે અને એમાં પર્યાય સ્વભાવ લઈએ, દ્રવ્ય સ્વભાવ, બે વાત જ્યારે લઈએ છીએ તો એમાં પર્યાય સ્વભાવ કેવો છે? તો કે પર્યાય સ્વભાવ એવો છે કે એનું એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થા રૂપે પરિણમન થાય છે અને તેમાં અન્ય વસ્તુ પોતાનું કાંઈ ભેળવી શકતી નથી. આગળ કહે છે કે આ ઉપરથી એમ સમજવું કે પરદ્રવ્ય રૂપ જ્ઞેય પદાર્થો તેમના ભાવે પરિણમે છે અને આ જ્ઞાયક એવો આ ભગવાન આત્મા એ પોતાના ભાવે પરિણમે છે. તેઓ એકબીજાને પરસ્પર કાંઈ કરી શકતા નથી. માટે જ્ઞાયક પરદ્રવ્યોને જાણે છે. જ્ઞાયક પરદ્રવ્યોનું જ્ઞાન કરે છે, એટલે પરદ્રવ્યોને જાણે છે એમ વ્યવહારથી જ માનવામાં આવે છે. નિશ્ચયથી જ્ઞાયક તો બસ જ્ઞાયક જ છે. અહીંયા તો બહુ મોટી વાત કરી છે કે નિશ્ચયથી જ્ઞાયક તો બસ જ્ઞાયક જ છે. અને પછી જે વાત આવવાની છે કે આ કળશ જે છે એ આગળની ગાથાની સૂચના રૂપે કહેવામાં આવ્યો છે ને,
એટલે અહીંયા પછી જે વાત આવવાની છે ગાથાની અંદર જે ખડીનું ઉદાહરણ લઈને વાત સમજાવવામાં આવશે તો એ અહીંયા ઉપોદ્ઘાત રૂપે કહી છે કે જે ખડી તો ખડી જ છે, એ નિશ્ચય છે. ખડી સ્વભાવે પરિણમતી ખડી ભીત સ્વભાવે પરિણમતી ભીતને સફેદ કરે છે. ખડી સ્વભાવે પરિણમતી ખડી પોતે પોતાના સ્વભાવે પરિણમે છે. એના ધોળાસ નામનો ગુણ છે એટલે એ પોતે એવા ભાવે પરિણમે છે. એટલે ખડી સ્વભાવે પરિણમતી એવી ખડી એ ભીત સ્વભાવે પરિણમતી ભીતને સફેદ કરે છે. ભીત પોતે ભીતના સ્વભાવે છે પણ એને જો ખડી સફેદ કરે છે એમ જ્યારે કહેવામાં આવે તો એમ કહેવું તે પણ વ્યવહાર કથન છે. કેમ કે ભીત તો ભીત જ રહે છે. એ ભીતની ઉપર જ્યારે ખડી લગાવવામાં આવી છે ત્યારે જે સફેદી છે, ધોળાશ જે દેખાય છે એ તો ખડીની છે. એટલે એ ત્યાં ન્યાય છે. અને તેવી રીતે અહીંયા કહે છે આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી કે તેવી રીતે જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક જ છે, એ નિશ્ચય છે. જ્ઞાયક સ્વભાવે પરિણમતો જ્ઞાયક પરદ્રવ્ય સ્વભાવે પરિણમતા એવા પરદ્રવ્યોને જાણે છે એમ કહેવું તે પણ વ્યવહાર કથન છે. આવા નિશ્ચય વ્યવહાર કથનને હવે ગાથાઓમાં દ્રષ્ટાંત દ્વારા સ્પષ્ટ કરે છે. અને પછી ગાથા 356 થી આગળ કુંકુદાચાર્ય ભગવાનની ગાથામાં એ વાત આવે છે. તો આ કળશ 214 છે. કળશ પ્રવચનની અંદર, કળશ અમૃતની અંદર પંડિત રાજમલજીએ 214માં કળશનો ખંડાન્વય સહિત અર્થ આ રીતે કર્યો છે કે કોઈ આશંકા કરે છે કે જૈન સિદ્ધાંતમાં પણ એમ કહ્યું છે કે જીવ જ્ઞાનાવરણ આદિ પૂતગળ કર્મને કરે છે, ભોગવે છે. તો તેનું સમાધાન આમ છે કે જુઠ્ઠા વ્યવહારથી કહેવા માટે છે, ખરેખર નથી. જુઠ્ઠા વ્યવહારથી કહેવા માટે છે. દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારતા પરદ્રવ્યનો કરતા જીવ નથી અને પરદ્રવ્યનો ભોગતા પણ જીવ નથી. એ જુઠ્ઠા વ્યવહારથી કહેવા માટે છે, વાસ્તવમાં એ નથી. એવી પણ કહેણી છે કે જે કોઈ ચેતના લક્ષણ જીવ દ્રવ્ય પોતાની પરિણામ શક્તિથી જ્ઞાનાવરણ આદિ રૂપ પરિણમે છે. જો ચેતના લક્ષણ વાળું જીવ દ્રવ્ય એ પોતે પરિણમે છે, પોતાના પરિણામ કરે છે, તો કે છે કે પોતાની પરિણામ શક્તિથી જ્ઞાનાવરણ આદિ રૂપ પરિણમે છે એવા પૂતગળ દ્રવ્યનું કાંઈ કરે છે એમ કેવું, જે કાંઈ એવો અભિપ્રાય છે તે બધો જુઠ્ઠી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે. ખરેખર એ પૂતગળ કર્મ જે છે, જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ જે છે એને જીવ કરતો નથી પૂતગળને, અને એના ઉદયો આવે છે તો એ જીવને કાંઈ કરતા નથી. તો એ વાત અહીંયા કરી છે કે પોતાની પરિણામ શક્તિથી જ્ઞાનાવરણ આદિ રૂપ પરિણમે છે એવા પૂતગળ દ્રવ્યનું કાંઈ કરે છે એમ કેવું, જે કાંઈ એવો અભિપ્રાય છે તે બધો જુઠ્ઠી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ વિચારતા એવો વિચાર, એવો અભિપ્રાય કાંઈ નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે કાંઈ જ વાત નથી, મૂળથી જુઠ્ઠું છે એવો સિદ્ધાંત સિદ્ધ થયો. તો એ રીતે 214મો કળશ છે. આ કળશ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે કળશ પ્રવચન માંથી લઈએ છીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, પ્રવચન નંબર 238. અહીંયા પહેલેથી શરૂ કરીને ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે આ કળશ ટીકા છે સમયસાર જે કુંકુદાચાર્ય દેવ સંવંત 1950માં ભરત ક્ષેત્રમાં થયા. તેઓ ભગવાન પાસે ગયા હતા. સિમંદર ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં ગયા હતા. 8 દિવસ રહ્યા હતા. ત્યાંથી આવી અને આ શાસ્ત્ર બનાવ્યા છે અને તેની ટીકા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે કરી. તો એમના આ કળશ છે અને એ આ 214મો કળશ છે. તો ત્યાંથી શરૂ કરી અને આજે હિન્દીમાં
પૂજ્ય ગુરુદેવ આપણને વિસ્તાર કરી અને સમજાવે છે. 214મો કળશ. हाँ, कलश टीका है. समय सार जो कुंकुंडाचार संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुआ, वो भगवान पासे गई थी. सिमंदर भगवान विराजते हैं, ત્યાં गई थी. 8 दिन रही थी. ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया है और उसकी टीका अमरचंद्राचार कुंकुंडाचार्य, इसका कलश है 214. जो सेठा हिंदी चले 214. यत्तु वस्तु कुरुति अन्य वस्तु न किंचनापि परिणामिनम स्वयं व्यवहारिक दृष्टि तन्मतम न अन्यत अस्ति किंपि नित्या. क्या कहते हैं? एक कोई आशंका करता है कि जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा है कि जीव ज्ञानावरण आदि पुद्गम को करता है, अनुभवता है. मूर्ति हाँ, लिखा है कि व्यवहारिक झूठी दृष्टि से कहने में आया है. ज्ञानावरणी आदि कर्म बनते हैं तो अपनी पर्याय से बनते हैं. आत्मा उसको मानते हैं, ऐसी बात है ही नहीं. एक द्रव्य की पर्याय अवस्था दूसरे द्रव्य की पर्याय कभी करते नहीं. ऐसी चीज है. वितराग परमेश्वर अपना ज्ञान में जाना, ऐसा वस्तु का स्वरूप क्या है कि आत्मा जैन सिद्धांत में ऐसा चला है न कि 8 कर्म ज्ञानावरणी जीव बांधे कहते हैं, और ज्ञानावरणी कर्म को आत्मा भोगे, ऐसा है न. वो तो व्यवहारिक झूठी दृष्टि से कहने में आया है. ऐसे ज्ञानावरणी कर्म है, ये अपनी ज्ञान की पर्याय को हीणी करे, ये भी व्यवहार से झूठी दृष्टि से कहने में आया है. परद्रव्य की पर्याय को पर्याय नाम अवस्था, परद्रव्य परिणमन करते हैं, उसकी अवस्था का परद्रव्य कर सके, ऐसा कुछ है नहीं. समझ में आया? हाँ, ये 4-6 प्रकार ज्ञानावरणी बनते हैं. 6 प्रकार है ना ज्ञानावरणी बांधने का. तत्प्रदोष निनव आदि. हाँ, ये 6 बोल है. ज्ञानावरणी का बंधन में निमित्त रूप में 6 बोल है. ये उसका भी कर्ता आत्मा अज्ञानी है. हाँ, अपनी पर्याय में पण जो दोष उत्पन्न होता है पुण्य पाप का, ये विकार है. અને आत्मा निर्विकारी स्वभाव है. तो जिसकी दृष्टि स्वभाव पर हुई, वो 6 कारण जिसके ज्ञानावरणी बंधे, ऐसा 6 कारण का भी करता ही नहीं होता. આવી ઝીણી વાત છે. એક દ્રવ્ય એક વસ્તુ दूसरी वस्तुની કંઈ પણ કરે, એ 3 કાળમાં જૈન દર્શન में ऐसी बात है नहीं. કે જેમ આત્મા ઈચ્છા કરે તો શરીર ચલે કે વાણી બોલે, ये बात 3 काल में सच्ची नहीं. क्योंकि परद्रव्य की पर्याय को परद्रव्य की पर्याय करे, ये परिणमन वाला परद्रव्य है तो अपने से परिणमता है, उसको दूसरा परिणमावे, ऐसा होता नहीं. तो सेठ ये तो कहते हैं झूठी दृष्टि से देखते हैं. हम तम्बाकू बेचते हैं, तम्बाकू लेते हैं, तम्बाकू का पैसा हम लेते हैं, ये सब क्रिया परद्रव्य की आत्मा करे 3 काल में नहीं, हम कहते हैं. हाँ, तो वितराग मार्ग है. सर्वज्ञ परमेश्वर
जैनेन्द्र देव जैने 3 काल 3 लोक एक समय में देखा। परमात्मा विराजते महावीर दीक्षित में, सिमंदर भगवान उसके पास गए थे कुंकुनाचार। 8 दिन रहे थे ना, आकर शास्त्र बनाया है। भगवान का आ संदेश है कि आत्मा जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म बनते हैं उसका आत्मा करता नहीं। तो शास्त्र में चला है ना, ये कहा ना, ये जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा है। देखो लोग तो कहते हैं पर जैन सिद्धांत में ऐसा कहा है, एम कहते हैं, एम कहिए ना, जैन सिद्धांत में भी लोग तो कहते हैं पर जैन सिद्धांत में पण ऐसा कहा है कि जीव ज्ञानावरणी पुद्गल कर्म को करते हैं और आत्मा ज्ञानावरणी कर्म को भोगता है। क्या किया ही इस सिद्धांत में ऐसा चला कि ज्ञानावरणी कर्म का परिणाम का आत्मा करता है और ज्ञानावरणी का परिणाम से अपने पर्याय में जो हीनी दशा होती है ये उससे होती है। तो ज्ञानावरणी कर्म का भोगता भी आत्मा है, एम जैन सिद्धांत में कहने में आया है? हाँ है। उसका समाधान इस प्रकार है, ये झूठे व्यवहार से कहने के हो सेठ है क्या 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 से क्या નથી ખબર એને એ ઓલા એના ચોપડા જો એ તો ધ્યાનમાં નથી બહુ રાખતો, પૈસાના ચોપડા નથી નીકળ્યા। झूठे व्यवहार से कहने को है झूठे व्यवहार से कहने को है। आ ચોપડા વાંચ્યા નથી ને, પૈસાનો ચોપડો વાંચ્યો सेठ। ज्ञानावरणी कर्म को आत्मा करते हैं और उसको भोगते हैं, ये व्यवहार झूठी दृष्टि से कहने में आया है। समझ में आया? निमित्त का ज्ञान कराया है। निमित्त क्या है? निमित्त है नहीं, इसका ज्ञान कराया, उससे पर में होता है कुछ, ऐसा है नहीं। जीनी बात भाई, पर की दया पाल सके आत्मा ऐसा है नहीं, हम कहते हैं। पर द्रव्य की पर्याय जो है ये पर आत्मा कर सके इसी 3 काल में है नहीं। पर को जीवा सके, पर को मार सके, पर को सगवड़ता अनुकूल दे सके, आहार पानी, ये आत्मा 3 काल में कर सकते नहीं। अरे जैन दर्शन क्या है उसकी खबर नहीं, अपनी कल्पना से अन्य जिंदगी अनंत में निकाला। यहाँ कहते हैं आया ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म आत्मा आयुष बांधते हैं, ऐसा कहना ही झूठी व्यवहार दृष्टि से है। आत्मा तो जी आयुष बंधे ही अपनी पर्याय कर्म की पर्याय से बनते हैं। आत्मा ही तो आयुष बंधे ऐसा भाव, भविष्य का आयुष बंधे ऐसा भाव किया, तो भाव का निमित्त होकर कर्म बनते हैं। तो व्यवहार से कहने में आता है कि आत्मा आयुष बंधा, पर ऐसा है नहीं। ये निमित्त खुला था तो निमित्त से ऐसा लिखा है ना, देखो ने जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा, ऐसा लिखा है। लोगों तो कहते हैं कि हम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, दुकान का धंधा चलाते हैं, माल पैसा को लेते हैं देते हैं, माल लेते हैं देते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, तो ये तो जड़ की क्रिया है। तो लोगों कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, तो जैन सिद्धांत में भी ऐसा चला है ना, एम कहा है।
पण छे ने भी समझ में आया। जैन धर्म सूक्ष्म बहुत है प्रभु, ये पर का तो करता नहीं, पर अपने में जो विकार होता है शुभ शुभ दयादान भाव आदि, उसका भी आत्मा स्वभाव की दृष्टि से करता नहीं, अज्ञान भाव से ये विकार का करता होता है। आई बात है बहुत जीवन बाबू, अनंत का अवतीर गले से मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रह उपजायो, छोटा आता है मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रह उपजायो, पर आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। आत्मा अनंत स्वरूप पंच महाव्रत पाया, पण तो राग है। अहिंसा सद्दत ब्रह्मचर्य परिग्रह महाव्रत भाव तो आश्रव है, चतुर सूत्र छठा अधिकार में ले आए उमा स्वामी, तो आश्रव पाया, ये तो दृष्टि मिथ्यात है। ये प्रतिज्ञा तो अशुभ से टालवाने को व्यवहार से कहने में आया है, इस व्यवहार से कहने में आया था। बाकी तो पुण्य व्रतनो विकल्प है, भगवान की भक्ति का भाव है, ये शुभ, पर ये शुभ मेरी चीज है न मैं करता हूँ, त्या लगी ये मिथ्या दृष्टि नज्ञानी है। आई बात है प्रभु, सूक्ष्म बात है बहुत, वितराग मार्ग અને એ જૈન दर्शन નું तत्व अंतर में समझा बिना उसका जन्म मरण मिटेगा नहीं कभी, यानी ऐसी बात जैन धर्म सिवाय दूसरे में है ही नहीं। यहाँ कहते हैं कि अन्य लोग को तो कहते ही है, एम कहते हैं भी है न भी, जैन सिद्धांत में भी एम है। सेठ क्या है पहली ये नहीं बात, अनुमति तो कहते हैं कि पर का करता पर का करे, ऐसा लोग को भी कहते हैं कि हम पर का करते हैं, तो जैन सिद्धांत भी हम कहते हैं। जैसे तुम्हारे क्या कह पढ़ना एम कहते पूछते हैं, वहां तो सुकर मान निकलता है सेठ। जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा, आत्मा 8 कर्म बांधे 8 कर्म भोगवे, ऐसा आता है ना शास्त्र में, कि ये बता कथन झूठी व्यवहार दृष्टि से कहने में आया है। कौन भोगवे, निगत ने निकाचित कर्म पड़ा हो तो आत्मा को भोगना ही पड़े, बात झूठी। कर्म जड़ है, भगवान आत्मा तो अरूपी चैतन्य है, ये जड़ की पर्याय भोगवे कि अपनी पर्याय को भोगवे। शू करे पण तत्व की खबर न मिले, यही कहते हैं करता है न भोगता है, उसका समाधान झूठे व्यवहार से कहने को है। तो सेठ તમાકુ ના પૂરા ભરી રાખી છે, પછી પૈસા ઉપજાવી છે ને શું કહેવાય તમાકુની બીડીઓ લઈને તમા મોટરનું આમ તો શું કહે છે સાધન, મોટર વિના સાધન શું કહેવાય, જીપ ગાડી કે શેઠને બધું છે ને जीप गाड़ी देगी नहीं, एक भी तुम्हें देखने को मलारगढ़ 40 तो मोटर घड़े है, गृहस्थ है ना तो बीड़ी वाला बड़ा व्यापारी है, तो कहते कि जीप से मैंने काम लिया, आत्मा जीप को चलाते हैं, ये बात तद्दन झूठी है, हम कहते हैं। समझ में आया? लोग तो कहते हैं, पर तुम्हें क्यों कहते हैं जैन सिद्धांत में? हम पूछते हैं कि भाई हमें कहते हैं झूठे व्यवहार से कहते हैं,
सच्चा व्यवहार ये है ही नहीं। सच्चा व्यवहार तो ये है कि आत्मा अपना परिणाम को करे, विकारी के अविकारी पर्याय परिणाम को करे, ये सच्चा व्यवहार है। निश्चय में तो आत्मा विकार का करता भी नहीं। धर्मी जीव है, जो सम्यक दृष्टि है, धर्म को जिसको भान हुआ है मैं तो चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा संकीर्ति जीव धर्मनी पहली चिट्ठी वाला ये पुण्य परिणाम का भी करता नहीं होता। समझ में आया? જેની વાત છે ભાઈ શું થાય જોયો? ये झूठे व्यवहार से द्रव्य के स्वरूप का विचार करने पर द्रव्य नाम पदार्थ आत्मा और परमाणु अपुद्गल जड़ उसका विचार करने पर है पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है। पर द्रव्य का आत्मा करता नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य अपने से प्रणमते हैं, उसको दूसरा क्यों प्रणमावे? समझ में आया? हाँ, लकड़ी चलती है तो के आत्मा उसको चला सके, ऐसे भगवान ना पाड़ते हैं, क्योंकि जड़ परमाणु है, उसकी पर्याय जड़ से होती है। आत्मा एम कहे मेरे से हुई, या मुंड मिथ्या दृष्टि है। जैन का तत्व की उसको खबर नहीं। समझ में आया? झूठा करता जीव नहीं को आज तो सेठ समझाई मुझे सादी भाषा है, वो हिंदी है। वो लाकड़ी नहीं चला तो हाथ को चला सकते नहीं, तो तो जड़ माटी है। ऐसे जो होती है तो जड़ की पर्याय है, जड़ से होती है। ऊंचू कही सके नहीं है कि जना ऊंचू कर सकते ही आत्मा नहीं। ये हाथ से हमें ऊंचा होता ऐसा नहीं। जिनी बात से प्रभु एक तत्व दूसरा तत्व का कोई परिणाम करे, तरण काल में जैन सिद्धांत में है नहीं। समझ में आया है? करता विचार करने पर, सत्य का विचार करने पर प्रभु मुनियम कहते हैं कि एक जीव द्रव्य परद्रव्य का कर्ता जीव नहीं। ये आहार में पानी खाते हैं, ये आत्मा उसकी क्रिया करे ऐसा है नहीं, एम कहते हैं। ये तो जड़ की क्रिया है, माटी की धूड़ है, तो दाल भात और तो पुद्गल अजीव है, तो अजीव का परिणमन आत्मा करे, खाने का प्रिय की है। अज्ञानी राग करे कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ऐसा राग करे, ये अज्ञानी। समझ में आया? धर्मी तो ये जड़ की क्रिया तो करे नहीं, पर सम्यक दृष्टि धर्मनी पहली शुरुआत वाला ये दयादान का परिणाम है, ये भी मेरा नहीं, ये विभाव है, विकार है, तो उसका भी कर्ता मैं नहीं। समझ में आया? श्लोक तो दिया था, आश्रोति कर्ता कर्म नहीं। करे कर्म सोही रे कर तारा, जो जाने सो जानन हारा। जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं कोई। अमृतचंद्राचार्य महाराज ना श्लोक माथी बनारसीदास समयसा नाटक उसने बनाया। करे कर्म सो ही करतारा, करना परिणाम हूँ कर सकता हूँ, और मेरा राग का भी परिणाम मैं कर सकता हूँ। ये करने वाला जानने वाला रह सकते नहीं, और जाने सो करता नहीं होई। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञाता हूँ,
ऐसा जो जानने वाला है, ये राग ने परद्रव्य का करता होता नहीं। समझ में आया? आ तो हाथों बधाથી લોલો થઈ ગયો, લોલો પરનો कुछ कर सकते नहीं। है पांगला है। स्त्री कुटुंब लड़का सबको हम नभा सकते हैं, ये मेरी चीज है, ये मान्यता। पर वस्तु जड़नी, आत्मा तो पर है, आत्मा से भी आत्मा पर है, शरीर पर है। तो पर का कुछ मैं करता हूँ, मैं उसकी संभाल करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये सब मान्यता मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की है। ये जैन नहीं, जैन की खबर नहीं। समझ में आया? झीणी बात है भाई। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर, उसकी वाणी ना न्याय सार बहुत अलौकिक है। तू यत यस्तु स्वयं परिणमन अन्य वस्तुन किंचन पी कुरुते। क्या कहते हैं भाई? किसी भी कहावत है, ऐसी भी कहावत है कि जो कोई चेतना लक्षण जीव दृढ़, भगवान आत्मा तो चेतना लक्षण है। ये तो जानना देखना लक्षण से जानने में आता है। ये चेतना लक्षण पर का कुछ करे ये तो है ही नहीं। है चेतना लक्षण जीव द्रव्य આમ કે છે લોકો કેટલાક એમ કે છે स्वयं परिणामीनम अन्य वस्तु न अपना परिणाम शक्ति से ज्ञानावरणादि रूप परिणमता है। क्या कहते हैं कि आत्मा में जो राग आदि परिणाम हुआ परिणमते हैं, तो ये परिणमते हैं, इससे होते हैं तो कर्म को भी परिणमाते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग को कहते हैं अपनी परिणाम शक्ति से ज्ञानावरणादि रूप परिणमता है। ऐसे पुद्गल द्रव्य का किंचन भी कुरुते कुछ करता है ऐसा कहना, यह व्यवहारिक दशा। जो कुछ ऐसा अभिप्राय है, ऐसा अभिप्राय जिसका है, ये झूठी व्यवहार दृष्टि से है। व्यवहार आया झूठा झूठा। समझ में आया? मैं आत्मा अपना परिणाम परिणमन करता हूँ, तो साथ में दूसरा को भी मैं परिणमन करा सकता हूँ। ऐसे मानने वाला झूठी व्यवहार दृष्टि से मानते ही सच्ची दृष्टि है नहीं। हरे काम आखो आ બધું આખો દી કામ ચલાના ને कुछ कर सकते नहीं। क्या कहते हैं? जब तक शुद्ध द्रव्य में स्थापित नहीं किया, ત્યાં સુધી રાગ નો करता है, परनो तो बिल्कुल नहीं अज्ञानी है। धंधा बंदा दुकान का तुम्हारा धंधा का तो अज्ञानी भी करता नहीं। जब लग अज्ञान है तब लग अपने पुण्य पाप का विकारी भाव का करता होता है, बस इतनी मर्यादा है। पर का अज्ञान भाव भी करे कि तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? क्योंकि पर पदार्थ अपना परिणमन से परिणमते हैं, पर वस्तु अपनी पर्याय से परिणमते है। एवं दूसरा उसको क्यों करे? जब लोग अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मूंड है, तब लोग भी राग ने पुण्य पाप का करता है, पर का करता तो किंचित नहीं, सुन स्वतंत्र परद्रव्य है, सुन भिन्न। समझ में आया? वो वाकई बातों सब है। बंद अधिकार में तो ऐसा लिया है नहीं,
मैं पर का दया पाल सकता हूँ, जीवा सकता हूँ, पर को मार सकता हूँ, पर को मैं आहार, पानी, औषध, दवा, सगवड़ता आप सकता हूँ। ये जी मूंड मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? गांधी व्याख्यान में आए थे ना, हमारी गांधी राजकोट। 5 नहीं साल हो, वर्ष बहुत हो गया, 39 वर्ष हुआ। गांधी जी आए थे व्याख्यान में, मोहनलाल गांधी। तो ये वक्त आवाज चली थी 39 वर्ष पहले, समाज था राजकोट। तो कोई पर की दया में पाल सकता हूँ, वो तो मूंड नहीं, मिथ्या दृष्टि है। तो उसको ऐसा लगा कि पोते काम करता था ना બધું હું दुनिया में। कौन देशना कल्याण कर सके? देशનું કલ્યાણ કરી દઉં, દેશને સગવડતા દઈ શકું, એ બધી માન્યતા झूठी मिथ्या दृष्टि की है। આવી વાત છે ભાઈ, હે મૂંડ છે ને અજ્ઞાની છે એમ કહ્યું બંધ અધિકારમાં કહ્યું તો ને, આ મૂંડ છે કહ્યું જયારે એને પણ પાઠમાં છે ને એ કહ્યું હતું ને। જયારે એક જણાને એક મહારાજ મને મૂંડ કહેતા હતા, ક્યાં मैं तो सिद्धांत पर निवास करी थी तो परने है तो आए तो वितराग मार्ग है, ये बात चलते कोई व्यक्ति नु कहीं आई काम नहीं है। लोक नु कल्याण करूं, देश की सेवा कर सकूं, ये तद्दन मिथ्या दृष्टि मूंड नहीं मानता है। पर द्रव्य कोई पण पर्याय मैं कर सकता हूँ। है भगवान आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं देखो कि प्रणमता है ना जीव, तो दूसरा को भी प्रणमावे, ऐसा है ना। ये व्यवहारिक दृष्टि से कहने में आता है। नित्यातपि नास्ति मतम। वस्तु के स्वरूप का विचार करने पर ऐसा विचार टीका में कैसा दिया है? टीका में कि मैं पर को जान सकता हूँ, पर को देख सकता हूँ, पर को छोड़ सकता हूँ। समझ में आया? 4 बोले भूलिए, एक बोल टीका में सुन। 14 विजयिता 14 છે ને। मैं जानता हूँ पर को देखता हूँ, पर को छोड़ता हूँ, पर को सरता हूँ। 4 बोले संस्कृत। पर को सरता हूँ ये बात तो झूठी है। पर को छोड़ता हूँ, मैं आर पानी छोड़ सकता हूँ, हाथ छोड़ देता हूँ। पर मैं क्या छोड़े? तो पर की अवस्था जाने वाली जाएगी, छूटने वाली छूटेगी। टीका में छोड़ता हूँ, मैं सरता हूँ पर को क्या सरदे? अपने को अपनी श्रद्धा करते हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप ज्ञान हूँ, मैं तो सच्चिदानंद प्रभु आनंद गुण का सागर में हूँ। आत्मा जो सेठा सागर आया, तुम्हारा सागर नहीं, आनंद गुण का सागर है। ऐसी अंतर्दृष्टि हो सम्यक, तब ये पर का तो करता ज्ञानी भी नहीं, पर ज्ञानी पीछे राग आता है। अधिक धर्मी हुआ तो अभी भक्ति आदि का भाव तो आता है कि नहीं? छता करता नहीं होता। समझ में आया? આવી વાત છે। नीचे में आ व्याख्या भी निश्चय थी मैं पर को देखता हूँ कि पर को जानता हूँ, पर को छोड़ता हूँ, पर को सरता हूँ, ऐसा है नहीं। व्यवहार से कहने में
झूठा व्यवहार से कहने में आता है। अरे अनंत बार मुनि लिया, पंच महावत धारण किया, और अंदर में राग का करता, मैं आत्मा भिन्न हूँ, आनंद स्वरूप, उसकी दृष्टि कभी क्या नहीं। ये दृष्टि बिना मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो। नवमी गृह के गिरिवान स्थान में लोक ना प्रमाण में ना, लोक पुरुष ना प्रमाण, तो गिरिवान में स्थान में अनंत बैर उपजे, અને તે ત્યાં કોણ ઉપજ શકે? સંકેતી ઉપજાઈ શકે, અને કા મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી પંચમાવર્તના ધરને વાલા જઈ શકે? पर मैं राग से भिन्न मेरी क्रिया चैतन है, ये आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। ये पंच महावर्त में पण परिणाम है, ये दुख है, आश्रय है। ये आत्मज्ञान बिन भगवान आनंद प्रभु चैतन मूर्ति, ऐसा आत्मा का ज्ञान बिना ले सुख न पायो। एक अंशे सुख न मिला, पंच महावर्त पाया अनंत बैर तो भी, क्योंकि तो आश्रय है, दुख है। समझ में आया? नहीं तो जी परका करता छूटना मुश्किल पड़े चंद्र ने। हमें तो हो सकती दुकान चलती है सरकी व्यवस्थित। हम ध्यान रखे दुकानों पर बैठे हो तो नौकर चाकर बराबर काम कर सके। हम घरे जाए यहाँ पर तो पाछड़ बूटा रहे, धूल में ही करता नहीं है। हमारा तो क्या रायचंद गांधी बोटाद में, रायचंद गांधी मोटी दुकान, तो ये शेठ आवे तो ध्यान रखे मानस, नहीं तो लांबा पग पीड़ा हो नहीं नो करो। तो मोटी शेरी शेठी आवे तो शेठ निकलिया ત્યાં એકદમ બેસી જાય હરખા બેહીને ઘરમાં। રાયચંદ ગાંધી હતા, 50,000 ની પેદાશ હતી તે દી આવતું, ઘણા વર્ષની વાત છે। અત્યારે 50,000 એટલે કઈ ન મળે। ધૂળે નથી કઈ બાપા, કોણ પેદા કરે કોણ ટાળે बापू। ये तो पैसा तो पूर्व का पुण्य निमित्त है, पैसा आने वाला हो तो आते। तुम के व्यवसाय किया राज का धंधा का तो पैसा मिला, ये बात में माल कुछ है नहीं। हाँ कहते हैं स्वरूप का विचार करने पर ऐसा विचार अभिप्राय कुछ नहीं न होता, ये अभिप्राय झूठो है। मैं पर को छोड़ता हूँ, पर को त्याग करता हूँ, पर को श्रद्धा करता हूँ, पर को जानता हूँ, पर को देखता हूँ, ये अभिप्राय झूठा है। समझ में आया? ये पर के काल में अपना ज्ञान की पर्याय को जानते दिखते हैं। समझ में आया? जो શહેરથી ભાઈ છે કે નહીં માં તો આપણે કારખાનું કોણ કરે બધું? અત્યારે તો એમ કે રતિભાઈ કરતા હતા એમ કે છે। કોણ કારખાનાને હલાવે કોણ? ये रजकण है, अजीव है। अजीवनी पर्याय होती है, अजीव से होती है। जीव से अजीव की पर्याय हो। अरे सच बात सांभळवा मिले नहीं, ये सच की क्यारे श्रद्धा करे क्यारे ज्ञान करेगा। 84 ना अवतार करी करीने दुखी 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 दुखी। एक श्वास में निगोद ना 18 भाव करे। लसन डूंगली पे प्याज, उसमें एक कटकी में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव।
ऐसा एक श्वास में ये लहसुन में प्याज में 18 भाव करे। एवा अनंत वैर किया, फर्क की करता बुद्धि छोड़ी नहीं। समझ में आया? अभिमान में मैं किया, दुकान ने ऐसी चला दिया, वधारे किया, हम पैसा इकट्ठा कर दिया। ये सब मिथ्या अभिप्राय है, एम कहते हैं। ऐसा अभिप्राय कुछ नहीं होता। ये अभिप्राय हाथों नहीं है। मैं पर को कन्या ज्ञानावरणी कर्म अपा करता है, विकता है, हताता है। आत्मा कर्म का करता, आत्मा कर्म का भोगता, बस ये माने हैं पर बराबर है। ये झूठी बात है। परद्रव्य की पर्याय कौन करे न कौन भोगवे। अपनी पर्याय में भी विकार करे, राग करे न राग तो भोगवे, वो भी दृष्टि में चाहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु, अनाकुल आनंद नो कंद, चिद कंद, आनंद कंद प्रभु है आत्मा। इसमें तो सुख का सागर भगवान आत्मा है, आनंद का सागर है। ये दृष्टि करने से आनंद का करना न आनंद का भोगना, ये बात बराबर है। समझ में आया? ये कुछ नहीं। ये अभिप्राय सच्चा नहीं। मैं पर का कर सकता हूँ, छोड़ता हूँ। अरे पर को छोड़ता हूँ, ये अभिप्राय सच्चा नहीं हम कहते हैं। हम स्त्री कुटुंब छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, हाथ या छोड़ दिया, क्या छोड़े? ये चीज ग्रहण की भी करी थी, छोड़े। आत्मा में त्याग उपादान सुनत तो शक्ति एक है। भगवान ने अनंत शक्ति देखी है भगवान आत्मा में। गुण, शक्ति को, गुण को, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत। तो उसमें एक गुण ऐसा है, त्याग उपादान सुनत तो शक्ति। प्रभु एम कहते हैं कि पर का त्याग ने पर का ग्रहण से तो तेरी आत्मा में सुन शक्ति पड़ी है। शक्ति सुन नहीं हो, पर का त्याग ग्रहण से सुन। शक्ति पहुंचती है। ये क्या शक्ति क्या कहना, गुण किसको कहे? એમને અંધી અંધા અનાદિથી ચાલે છે। ભવ ભ્રમણનો નાશ કેમ થાય એની ખબર નહીં। વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને पूजा करो, धर्म हो गया। धूड़े धर्म नहीं तो राग है। धर्म तो राग से भिन्न होकर अपना शुद्ध स्वभाव का वेदन करना ने भोगना, उसका नाम परमात्मा धर्म कहते हैं। व्रत आदि तप्त है, आदि भाव है तो शुभ राग है। राग है तो बंध का कारण, दुख का कारण है। कहने में चाहता है कि तो कहने में आता है, झूठ है बना। भावार्थ इस प्रकार है कि कुछ ही बात नहीं, मूल से झूठ है। पर को छोड़ता हूँ, पर को मानता हूँ, पर को जानता हूँ, पर को देखता हूँ, मूल से झूठ है। मूल से झूठ है, જેનું મૂળ झूठू सब। ऐसा मैं छोड़ दिया, ऐसा मैं त्याग कर दिया, ऐसा त्याग कर। किसका त्याग करे? पर वस्तु केदी ते ग्रहण किया था, त्याग करे। की बात भाई बहुत। अमृतचंद्राचार्य का कथन से दिगंबर संत 1000 वर्ष पहले हुआ और कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले हुआ। उसका श्लोक है, टीका है।
अरे मनुष्यपणु पामीने पण जैन दर्शन क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, ऐसा दृष्टि और ज्ञान न किया तो मनुष्यपणु मिला न मिला जैसा है। तो यहाँ ये कहते हैं मूल से झूठ है क्या, ये पर का करता न पर का भोगता न पर का छोड़ता न पर का करता, मूल से झूठ है। यह बस ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ, जो ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ कि पर का त्यागना, पर का पालना, पर का बचाना, पर को मारना, पर का लेना सुख दुख ने, ये सब अभिप्राय झूठ है, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। एक कर्म ने करे, एक कर्म ये कर्म ने करे, ये सिद्धांत झूठा बोलवा आया एम के तो पहले कहूं अब सिद्धांत है। ये कहा ने 8वीं गाथा में व्यवहार से कहने में आता है कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, अंतर अनुभव हो, उसको आत्मा, ये भी व्यवहार से कहने में आया है। भेद पाड़ के कहा ने कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा 8वीं गाथा में आया है। ये अनाज भाषा थी क्या व्यवहार भाषा थी? समझ में आया? तो सोता जने पण दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ऐसा भेद ऊपर लक्ष न करना। और केनार मानस पण व्यवहार ने नहीं अनुसरना, शाती है विकल्प आ जाते पण अनुसर नहीं करना है ने, न अनुसर भी हो, अनुसरते भी हो, व्यवहार ने अनुसरो नहीं। पुण्य पाप ना दयादान वसना भाव तो राग है, उसकी तो बात क्या कहना, पर एक चीज भगवान आत्मा 3 पणे कहना, दर्शन ज्ञान चारित्र पणे प्रणुप्त एम कहना, ये व्यवहार। तो ये व्यवहार को अनुसरना नहीं। न व्यवहार आया बिना रहते नहीं। समझाने में व्यवहार से भेद पाड़ के समझाना पड़े, दूसरी तो कोई चीज नहीं, पर ये व्यवहार आदरणीय नहीं। समझ में आया? ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। એ રીતે 214મો કળશ એનો વિસ્તાર પૂરો થયો। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ।